آج ویو 360 میں ٹوائلٹس کی سہولت سے محروم زندگی گزارنے والے کروڑوں پاکستانی اور خاص طور سے خواتین کی صحت اور سیکیورٹی خطرے میں کیسے ہے، بات کریں گے آج کے شو میں۔ جس وقت ہم باہر جاتے ہیں واش روم کرنے بہت شرم آتی ہے، بے حیائی ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا میں ہر سال 8 لاکھ سے زیادہ اموات ٹوائلٹس کے نہ ہونے اور صفائی ستھرائی کا ناقص انتظام ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ پاکستان کے دیہی علاقوں میں آج بھی زیادہ تر آبادی رفع حاجت کے لیے ٹوائلٹس کا استعمال نہیں کرتی۔ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ کیا پاکستان میں عوام اور حکام کو اس بات کا ادراک ہے کہ اس بنیادی سہولت کے ہونے سے کتنی جانیں بچ سکتی ہیں۔ پاکستان میں صاف پانی کی دستیابی اور صحت اور صفائی کی سہولیات پر کام کرنے والی بین الاقوامی NGO واٹر ایڈ کے مطابق دنیا بھر میں ٹوائلٹس کی سہولیات کے حوالے سے پاکستان 7واں بدترین ملک ہے۔ ملک میں 7 کروڑ 90 لاکھ لوگوں کے پاس باقاعدہ ٹوائلٹس کی سہولت نہیں ہے۔ اگرچہ ملک میں سینیٹیشن کی بنیادی سہولیات تک رسائی میں بہتری آئی ہے، یونیسیف کے مطابق ابھی بھی کم از کم 2.5 کروڑ پاکستانی گھر سے باہر کھلی جگہ پر رفع حاجت کرنے پر مجبور ہیں۔ ورلڈ بینک کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ 68% پاکستانیوں کو سینیٹیشن کی کم از کم بنیادی سہولت میسر ہے۔ ایک بڑی تعداد میں پاکستانیوں کے پاس ٹوائلٹس کے پانی کے مناسب اخراج اور اس کو ٹھکانے لگانے کی سہولت نہیں ہے۔ یہ گندگی پاکستان میں پانی کو جس طرح سے آلودہ کرتی ہے اور یونیسیف کے مطابق یہ بھی ایک وجہ ہے کہ 70% پاکستانی گھرانے بیکٹیریا سے آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق ٹوائلٹس کی کمی کی وجہ سے پاکستانی معیشت کو ہر سال $2.5 ارب کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ہم 8 سے 10 گھنٹے اگر ہم سوچتے ہیں تو 8 سے 10 گھنٹے ہم دفاتر میں گزارتے ہیں۔ ذرا سوچیں اگر ہمارے دفاتر میں ہمیں ٹوائلٹس کی سہولت دستیاب نہ ہو تو کیسی صورتحال ہوگی۔ پاکستان کے بیشتر اینٹوں کے بھٹوں پر روزانہ سینکڑوں بھٹا مزدور ٹوائلٹس کی سہولت سے محروم ہیں۔ سمن خان نے شیخوپورہ میں چند بھٹا مزدوروں سے اس سہولت کی غیر موجودگی پر بات کر کے ان کی مشکلات جاننے کی کوشش کی۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے ہمارے بٹھوں پہ واش روم نہیں ہے۔ جس وقت ہم باہر جاتے ہیں واش روم کرنے بہت شرم آتی ہے، بے حیائی ہے۔ 4 چفیرے اسی وینے ہیں کہ کوئی سن ویندا تے نہیں تے کوئی تصویراں بھی بنا لیندے ہیں جدے بھی لوگ نے جدوں کسے دی پیلی وچ جائیدا وٹے بھی مار دے، بدتمیزی کر دے، گالی گلوچ کر دے نے تے ساڈے واسطے بڑی شرم دی بات ہے۔ ہن سانوں برداشت کرنا پیندا ہے اس تو کہ اسی اودی پیلی چ جا کے بیٹھنے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ ہمیں پیشاب آیا ہوتا تو ہم جاتے ہی نہیں، ڈرتے۔ واش روم کے لیے کبھی پانی بھی نہیں ہوتا تو کبھی ایسا ہم کرتے ہیں روک لیتے ہیں اور روکنے کے باوجود کئی بیماریاں بن جاتی ہے۔ کر لیں 2 منٹ لگائیں بس فٹافٹ۔ ہم کافی عرصے سے یہاں پٹھے پہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک کوارٹر دیا ہوا ہے، وہیں پہ ہم پکاتے ہیں، وہیں پہ کھاتے ہیں۔ جب ہم پکاتے کھاتے ہیں ہمیں واش روم کی بھی تو ضرورت ہے نا، تو واش روم نہیں ہے۔ دیکھو یہ کتنی جگہ ہے، انہوں نے ہمارے لیے چھوٹا سا واش روم نہیں بنایا۔ وہ کہتے ہیں اتنی کھلی جگہ ہے، باہر چلے جاؤ پیلیوں میں۔ تو جب ہم پیلیوں میں جاتے ہیں 2-3 عورتیں ہوں تو پھر جاتی ہے ایک دوسرے کا سہارا لیتی ہیں تو پھر باہر جاتی ہیں۔ کھلی جگہ پہ اوپن ہے ساری، دیکھو پہ یہاں کو بیٹھنے کے لیے جگہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پھر یہاں ایک عورت کپڑا تانتی ہے، پھر ہم واش روم کرتے ہیں۔ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਆਈ, ਅੱਗੋਂ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਲੀਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਕਿ ਬੇਟਾਈਮਾਂ ਜੇ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਸਰਗੀ ਵੇਲਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡੀ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਬੇਵਸ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਸਾ, ਜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਪਥੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਓਲੇ, ਚਰੀਆਂ ਦੇ ਓਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਓਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਸੋਚਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ نہیں ਆਉਂਦੀ۔ پاکستان میں اینٹوں کے بھٹوں کی کل تعداد تقریباً 19,000 ہے، جبکہ ان میں سے تقریباً 11,000 پنجاب میں رجسٹرڈ ہیں۔ کاغذی اعتبار سے یہ بھلے غیر رسمی شعبہ ہے، لیکن ان بھٹوں میں خواتین اور مرد مزدوروں کی ایک بڑی تعداد کام کرتی ہے۔
रोज़गार की जगह पर टॉयलेट्स की सहूलत का ना होना मज़दूरों के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। भट्टा मज़दूरों के हुकूक के लिए काम करने वाली सैयदा गुलाम फातिमा कहती हैं कि भट्टों पर वॉशरूम बनवाने से ज़्यादा मज़दूरों समेत मालिकान की सोच बदलने की ज़रूरत है। वो ऐसा किस तजुर्बे की बुनियाद पर कह रही हैं, लाहौर से समन खान ने उनसे बात की। हमने 2011-12 में एक यूरोपियन यूनियन के तामन से प्रोजेक्ट किया कि हमने भट्टों पर लैट्रीनें बनानी है। आप यकीन करें हमें इतने मसाइल फेस करना पड़े। हमारा ख्याल था भट्टा मालिक बड़ा खुश होगा कि हम वहाँ उनकी मजदूर औरतों के लिए, मर्दों के लिए लैट्रीनें बनवा के दे रहे अपने पैसों से। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, ये नहीं, इनको नहीं पता, इनको लैट्रीन के इस्तेमाल का ही नहीं पता। मैंने कहा वो कैसे, हम इनको सिखा देंगे। अगर इनको नहीं पता हम इनको कम से कम इनको पर्दा तो मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये तो खुली जगह पर जाने के आदी लोग हैं। बहुत कोशिश के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हुए, लेबर डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करते हुए जब हम किसी हद तक वहाँ पर पहुँचे, हम कामयाब हुए। तो भट्टा मालिक ने कहा जी हमारी तो ये लीज की ज़मीन है, हम इसके मालिक नहीं हैं, मालिक इसकी इजाज़त ही नहीं देंगे। एक दिन अचानक मालिक मुझे ही मिल गया, बुजुर्ग थे वो। हमने कहा कि जी हमें थोड़ी सी जगह चाहिए, हम ना भट्टे पे यहाँ पर मजदूरों के लिए लैट्रीन बनाना चाहते। कहता है इससे अच्छा काम क्या है। और उसका जवाब सुने, उसने कहा औरत जो है वो ईसाई की हो या मुसलमान की हो, इज्जत तो एक जैसी है ना जी। जब हमने वहाँ पर लैट्रीनें बना दी तो मालिकान ने उसके अंदर सीमेंट डाल के उसकी ड्रेनेज को ब्लॉक कर दिया। हाँ तो भी जा। ये एक बहुत ही अजीब किस्म की हैरेसमेंट है। औरतें जब खुली जगह पे जाती हैं, उनके ऊपर रात के अंधेरे में मोबाइल से टॉर्च मारी जाती है, मोबाइल से उनकी वीडियो बनाई जाती है, फिर उनको उनकी वीडियो जो है वो अपने ही वहाँ कम्युनिटी के अंदर शेयर करते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। औरतों को यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है पेशाब रोकने से, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं मज़दूरों के लंबा ज़्यादा देर पेशाब रोकने से। और फिर ये कि ये काम करते हैं, मशक्क़त का काम है, गर्मी का मौसम है, प्यास बहुत लगती है, पानी ज़्यादा इनटेक है, और उसके लिए जब उनको पेशाब के लिए जाना पड़ता है तो वो उनको उसके लिए मौका तलाश करना पड़ता है। वो देखते हैं कि कौन सा वक्त मुनासिब है जिस वक्त जाकर हम कहीं पर जाके ना अपनी इस हाजत को जो है ना वो कर सकते हैं। सारे भट्टे जो है वो सिटी एरिया में नहीं है। हमने जिस जगह पे यूनियंस बनाई, हमने अवेयरनेस की, हमने वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की, हमने उनकी एजुकेशन की, वहाँ पर वर्कर्स ने उनको मजबूर किया और वहाँ पर लैट्रीनें इक्का दुक्का बनना शुरू हुई हैं। तो फाइनली हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हम वर्कर्स की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन करें, उनको बताएं कि ये कितनी बीमारियां जन्म लेती हैं जब आप साबुन से हाथ नहीं धोते, जब आप पानी इस्तेमाल नहीं करते। पाकिस्तान के सूबा सिंध में गुज़श्ता साल के तबाहकुन सैलाब के बाद वहाँ के लोगों को रहने के लिए तो जैसे तैसे कोई जगह मिल गई है, लेकिन अभी तक दूर दराज इलाकों के अक्सर गांव देहात में ख़वातीन को टॉयलेट्स की सहूलत मुयसर नहीं है। हमारी साथी सिद्रा डार ने ऐसी ही बाज़ ख़वातीन से बात की। सैलाब से मुतासर होने वालों में जोही के कई गांव थे जो ज़ेरे आब आए, लेकिन ये एक ऐसा गांव है जहां ख़वातीन को शुरू से लेकर अब तक टॉयलेट की सहूलत मुयस्सर ही नहीं रही। ये खुली जगह है जहां वो रात के वक्त रफ़ाए हाजत के लिए आती हैं और बहुत डर महसूस करती हैं। ये आर्जी तौर पर एक गुसल खाना बना हुआ है। 21वीं सदी के इस दौर में जहां दुनिया तरक्की की मनाजिल तय कर रही है, वहां आज भी ख़वातीन बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरस कर रह गई हैं। और सैलाब से पहले भी वॉशरूम नहीं था, नहीं। बिल्कुल ही नहीं था। ऐसा ही यही शुरू से बचपन से लेके अब तक यही देखा है। जब हम छोटे थे ना, इतने बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, 30 ईयर एज है, ऐसे ही हम देखते। वाशरूम हमारे पास है ही नहीं। चौ तरफ ये बाड़े जो होते हैं ना काठियों के, लकड़ियों के, उसके तरफ से उस हिसाब से हम वाशरूम में लेडीज़ यूज़ करते हैं, फीमेल के हिसाब से। हमारे पास वाशरूम है ही नहीं। गांव में 1-2 वाशरूम है, सबको अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। कोई दूसरे घर तो नहीं जा सकती ना फीमेल के हिसाब से, हम यूज़ नहीं करते। हम अपने हिसाब से अपने घर में कैसे कि बहुत तकलीफ़ दिए, बस मैं वो बयान नहीं कर सकती। आफत में एक तो हमारे घर टूट गए, उसकी वजह से औरतों के लिए जो कोई भी पीरियड्स के मसले होते थे, बहुत मसले होते थे औरत के लिए, और लड़कियों के लिए बहुत थे। हमारे लिए पैकिंग के लिए कुछ भी नहीं था।
उसके बाद हम बहुत परेशान थे, किसी को बोल भी नहीं सकते थे, वॉशरूम का बहुत मसला था, कहीं जा भी नहीं सकते थे, वॉशरूम खुले आसमान तले बैठ भी नहीं सकते, इज़्ज़त का मसला था। मुझे तकलीफ़ हुआ, ज़ाहिर गल मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे तकलीफ़ हुआ, मैं किसी सिस्टर को बोलती थी मुझे ये तकलीफ़, मेरे साथ चलो, वो हमारे साथ चलती थी। किसी कोने में जाके ज़रूरत पूरी करनी थी, क्या करते, वो तो हमारे हाथ में तो नहीं था। लेटरिन इन्हें नहीं दिया, पानी भी मीठा नहीं दिया, वो भी नहीं था, अजय तक ही नहीं था। औरत मजबूर थी, वो कहाँ जाती, औरत को इतनी मजबूरियाँ थी, इतनी मजबूरियाँ थे। मर्द थे तो मर्द बाहर चले जाते थे, कहाँ भी जाते थे, औरत कहाँ जाएगी। अभी भी हमारे पास वॉशरूम नहीं, अभी भी बोल रहे हैं सैलाब आएगा, आएगा तो कहाँ जाएंगे, बोल बोल के 42 NGOs काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट दादू में, कोई भी यहाँ तक नहीं आए को वॉशरूम। बाकी विलेजेस में पूरे में वॉशरूम सही हो गए, सबको दे दे फराहम भी हो गए, हमारे पास नहीं आए। क्यों नहीं आए, गरीब हैं, आवाज़ ऊपर नहीं कर सकते, उसकी वजह से हम गरीबों तक नहीं आते। इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। कराची से सिद्रा डार हमें ज्वाइन कर रही हैं। चंद हफ्ते पहले अंदरून सिंध गई थी और वहाँ टॉयलेट्स की सहूलत की कमी को देखा और वहाँ की ख़वातीन को इससे दरपेश जो मसाइल हैं इससे दरपेश उन पर उन्होंने रिपोर्टिंग भी की। सिद्रा, आपने वहाँ जो देखा कितना बड़ा मसला है, अभी कुछ हद तक आपकी रिपोर्ट में हमें अंदाज़ा हुआ उस बात का, ये मसला अंदरून सिंध में और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ही है? जी, हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हम किसी और टॉपिक पे काम कर रहे थे, लेकिन हमें वहाँ ख़वातीन ने ये बताया कि उनके गांव में सैलाब होके चला गया है, सब कुछ सही हो गया है, घर भी उन्होंने दोबारा से बना लिए, लेकिन वॉशरूम्स नहीं है। एक लम्हे को हमें ये महसूस हुआ कि शायद ये कहना चाह रही कि वॉशरूम्स पहले तो थे लेकिन अब नहीं बने, लेकिन जब मालूम हुआ कि वहाँ सिरे से वॉशरूम बनाने का रिवाज ही नहीं है या उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी हैरानकुन बात थी। जब सैलाब सड़क किनारे तो हर तरफ पानी कहाँ जाए, और जाहिर सी बात है कोई मसाइल हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा एक मसला ही यही था, और ख़वातीन हमारे पास इसीलिए आके बात करती हैं कि चले कोई खातून रिपोर्टर है वो हमारे मसले को सुनेगी। अब जब हम इस गाँव में गए तो हमें 1 साल के बाद ये रियलाइज हुआ कि ये कितना बुनियादी मसला है और अहम ख़वातीन मुतालबा करेंगे, लेकिन इसे सिरे से सीरियस लिया ही नहीं जा रहा। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि हम आपके मर्दों से बात करते हैं तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, लेकिन उन्होंने कहा कि मर्दों की तरजीह नहीं है और वो इस पे बात भी नहीं करेंगे। जो बुजुर्ग ख़वातीन थी उन्होंने हमें कोने में ले जाकर ये भी कहा कि मर्द ये समझते हैं कि ये एक ऐसा काम है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसका घर के अंदर बनना वॉशरूम का घर के मसाइल में इजाफा करेगा, और ये गंदगी है, और रफ़ाए हाजत से आप मतलब उसके ऊपर एक वॉशरूम बनाने पे पैसा क्यों खर्च किया जाए। तो ये एक में ये मुआशी हालात की वजह से नहीं था, इसकी और भी कुछ रीजंस हैं, या मतलब मुआशी हालात ज़्यादा हैं अगर हम इसको कंपेयर कर सकें, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉस्ट तो इन्वॉल्व होगी इसमें। बिल्कुल ऐसा है, एक तो मुआशी मसाइल भी नजर आते हैं, दूसरा कुछ वही वाली बात के हर जगह के कुछ रस्म और रिवाज हैं और वो जो शुरू से देखते आ रहे हैं कि एक प्रैक्टिस उनकी रही है वो उसको भी फॉलो कर रहे हैं। जैसे अमूमन हम देखते हैं कि शहरों में भी अगर आप देख लें तो इतने बड़े शहरों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स में ख़वातीन के लिए कोई अच्छी बेहतर वॉशरूम नजर ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर भी एक मखसूस तबका है जो ये समझता है कि इसको ख़वातीन को खास जरूरत नहीं। वो के शहर की ख़वातीन बहुत सारे मसाइल हल कर लेती हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो कहती हैं कि हम बाहर निकले हैं तो हम किसी मॉल में चले जाते हैं, लेकिन अगर वो आम बाजारों में गई हो या दफातर में, उनके लिए वॉशरूम के मसाइल हैं इतना बेहतर और कंसीडर नहीं किया जाता कि उनके लिए अलहदा वॉशरूम जो उनको उसकी ज़रूरत हो सकती है, उसमें क्या क्या ज़रूरत चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन गाँव देहातों में तो वैसे ही ख़वातीन के जो अहम हुकूक हैं या बुनियादी हुकूक है उस पर बात करने पे उनको इतनी इजाज़त नहीं मिलती, तो वॉशरूम का मुतालबा लगता है ऐसे कि उनके मर्दों के लिए एक ऐसा है जिस पे हमें पैसा खर्च करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ये जो गांव मोहम्मद खान है, इससे जो हमें अब तक इत्तलात मिली है वो ये कि चूंकि शुरू से लेकर अब तक यही रस्म रिवाज चले आ रहे हैं कि एक ऐसी चीज को घर के अंदर या गांव के अंदर नहीं बनाने की जरूरत जिससे गंदगी और बीमारी फैले, और हमारे बुजुर्गों ने या पुरखों ने ऐसी ही जिंदगी गुजारी है, तो ये कौन है ख़वातीन को
اس پر بات کرنی ہے. لیکن چونکہ اب یہ لڑکیاں پڑھ لکھ رہی ہیں, باہر جاتی ہیں, دیکھتی ہیں, تو انہیں لگتا ہے کہ جو یہاں پر NGOs ہیں وہ ان کی مدد کر سکتی ہیں, یا حکومتی سطح پر کوئی ایکشن لے کر ان کے لیے یہ ضرورت جی. پوری کی جا سکتی ہے. تو سدرا, NGOs اور مقامی اور صوبائی حکومت اس بارے میں کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ٹوائلٹس کی سہولت ان کے گھروں اور کام کرنے کی جگہوں پر دستیاب ہو سکے؟ دیکھیے, گاؤں دیہاتوں کی جہاں تک بات ہے تو وہی بات کہ وہاں پہ جو انتظامیہ ہے ان کا تو یہی کہنا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ فلڈ کے ٹائم پر ہم نے دیکھا تھا کہ عارضی جو ٹوائلٹس تھے وہ تو بنا کے دیے گئے تھے, لیکن پھر لوگ جب وہاں سے نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے مدد آپ کے تحت کر لیا. یہ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر اس کے اوپر خاص توجہ نہیں دی جا رہی. وہی والی بات پرائیورٹیز کی ہے. جہاں تک شہر کی بات ہے تو شہر میں اگر آپ بات کریں تو جو جس TMC ہو گئی یا جو دوسرے ادارے ہو گئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو شہر میں پبلک واش رومز وغیرہ بناتے ہیں اور اس کی مینٹیننس کے اوپر اچھا خاصا پیسہ درکار ہے, یہ سب کے لوگ استعمال نہیں کرتے. جبکہ اگر آپ خواتین سے بھی بات کریں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جو ان واش رومز کا حال ہوتا ہے, اگر وہ وہاں چلی بھی جائیں تو انہیں لگتا ہے کہ دروازے کی کنڈی نہیں ہے, وہاں پانی نہیں ہے, وہاں کچرا پڑا ہوا ہے, اس کی جب مینٹیننس پراپر ہوگی نہیں, یا شہری حکومت کی یا جن کی انتظامیہ کی اس کے انڈر میں وہ چیزیں آتی ہیں وہ اس کو ترجیح ہی نہیں دے رہے, تو پھر ہم کیوں رسک لیں ایسی جگہ پہ جانے کے لیے. میں اگر اپنی پرسنلی بات کروں تو جب میں ٹریول کرتی ہوں یہاں سے کراچی سے انٹیریئر جانے کے لیے, تو جو ہائی ویز کے اوپر مختلف ہوٹلز یا مختلف جو پیٹرول پمپس ہوتے ہیں ان میں جو واش رومز ہیں, اگر میں ان کی حالت بیان کرنے پہ آؤں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھے بھی بعض اوقات کئی گھنٹے میں بغیر پانی کے صرف اس لیے ٹریول کرتی ہوں کہ مجھے کسی واش روم میں نہ جانا پڑے, کیونکہ نہ وہاں پانی ہوتا ہے, نہ صفائی ہوتی ہے, دروازے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. اور اگر آپ وہاں پہ کسی مرد سے پوچھیں کہ جی خاتون کے لیے کوئی واش روم ہے, تو وہ ایک دم سے آپ کو حیرت سے دیکھ کے کہتے ہیں آپ کو الگ واش روم کیا جانا ہے, آپ اس میں چلی جائیں, مطلب جو کہ مردوں کے لیے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی نارم ہے, اور جس طرح سے آپ پرسنل ایکسپیرینس بھی اس میں سدرا شیئر کر رہی ہیں, تو یہ ابھی تک اس پہ شاید ایجوکیشنل پرسپیکٹیو سے بھی کچھ جو ہے آگہی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, ایک سوچ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے اب تک رپورٹ کیا اس کے مطابق تو یہی سمجھ آتا ہے. بالکل, نہ صرف سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور میں جو وہاں پہ لوگوں سے بات کرتی ہوں, جو NGOs کے لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان گاؤں دیہاتوں میں بیٹھ کر بتانے کی اشد ضرورت ہے, ان کے مردوں کو خاص طور پہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک عورت کا کے لیے واش روم کا ہونا کتنا ضروری ہے, کیونکہ اگر وہ اسے استعمال نہیں کرے گی یا وہ صاف ستھری نہیں رہے گی تو وہ کتنی زیادہ بیماریوں کا شکار ہو سکتی ہے, اور پھر اس سے آپ کے خاندان پہ اور آپ کی فیملی پہ کتنا برا اثر پڑے گا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو یہ بات نہیں سننا چاہتے. رائٹ, بہت بہت شکریہ سدرا, آپ نے ہمیں جس طرح سے جو اس وقت سچویشن ہے اندرون سندھ میں اور خاص طور پہ اوور آل پبلک ٹوائلٹس کے حوالے سے اس پہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی. اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر شیرشاہ سید سے, جو اس وقت ہمیں اٹلانٹا سے جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر سید, کیا وجہ ہے کہ اقوام متحدہ ٹوائلٹس کی بنیادی سہولت کو خواتین کی سیکیورٹی اور صحت سے منسلک کرتا ہے؟ دیکھیں, یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے ملک میں جو واٹر بورن ڈیزیز ہے, جو پانی کی بیماریاں, وہ 70% سے زیادہ لوگوں کو ایسا پانی مل رہا ہے جس کے بیکٹیریا موجود ہوتا ہے. اور یہ سلسلہ آپ شروع کریں جہاں سے دریا نکلتے ہیں اور ساتھ ساتھ چلے جائیں جہاں پر دریا گرتے ہیں. اسی جگہ بھی پراپر شہروں دیہاتوں قصبوں میں پراپر نہ تو سینیٹیشن کا انتظام ہے اور نہ ہی صاف پانی کا انتظام. تو یہ جو دریا اور چشمے اور نہروں اور کے راستے ہیں, ندی کے راستے ہیں, انہی دریاؤں میں سارا سیوریج آ کے ملتا ہے. یہی سیوریج بعد میں لوگ سارے راستے پیتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں تقریباً 53,000 بچے ہر سال واٹر بورن ڈیزیز کی وجہ سے مر جاتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ 110 بچے روز مر رہے ہیں. اسی طرح سے دیکھا جائے تو 70% لوگ ہمارے ملک میں ایسے ہیں جن کو صاف پانی میسر نہیں ہے. میں سدرا کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں مردوں اور خاص طور پر عورتوں کے لیے تو پراپر سینیٹیشن کا نظام ہے ہی نہیں. آپ صرف کراچی اور حیدرآباد اور بڑے بڑے شہروں کے سرکاری اسکولوں میں چلے جائیں, سرکاری کالجوں میں چلے جائیں اور لڑکیوں کے اسکولوں کالجوں میں چلے جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے, بلکہ آپ صدمے کا شکار ہو جائیں گے کہ یہاں پر بچیاں کرتی کیا. میں ڈاکٹر ہوں. تو ڈاکٹر صاحب, یہ پھر کیا بیماریاں جو اس سے, بیکاز آف کورس یہ طبی مسائل کو بھی جنم دیتی ہے اس طرح کی صورتحال, تو کون سی بیماریاں ہیں, کون سے طبی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے؟ دیکھیں نا, جتنے بھی پانی واٹر بورن ڈیزیز ہے, کولرا ہے, ہیزا ہے, ہیپیٹائٹس اے ہے اور ہیپیٹائٹس ای ہے,
इस तरह की जितनी भी बीमारियां, जितनी भी पेट की खराबी की बीमारी, सारी की सारी बीमारी इसी से आती है। पोलियो का सिलसिला भी इसी से जाके बनता है, क्योंकि जब अगर आपको साफ पानी नहीं होगा और सीवरेज का मुनासिब इंतजाम नहीं होगा तो पानी के जरिए फैलने वाली बीमारियों के आप शिकार होते रहेंगे। और इसमें सरकार की बेइज्जती है, समाज की बेइज्जती है। आप देखें ये बड़े बड़े अस्पताल बन जाते हैं सरकार में और गैर सरकारी अस्पतालों में। अक्सर अस्पतालों में औरतों के लिए खुसूसी तौर पर कोई इंसान नहीं होता है जाकर के वो टॉयलेट इस्तेमाल कर सके। ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। मेरे तो ख्याल में ये सेहत का मसला तो है ही, ये बुनियादी तौर पर इंसानी हुकूक का भी मसला है। ये अच्छी इस पे भी डॉक्टर साहब बात करेंगे, लेकिन एक चूंकि पैसों से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें आजकल समझ आती हैं पाकिस्तान में, तो मईशत में ख़वातीन की जो शमूलियत है उसके लिए ख़वातीन को ये सहूलत दस्तयाब होना कितना ज़रूरी है? देखिए ये तो बुनियादी चीज़ है, और अगर आपको ये सहूलत मुयस्सर नहीं होगी तो आप बहुत सी बीमारियों का शिकार होंगे, जैसा कि अभी सिद्रा ने ये बताया और उससे पहले जो लोग बता रहे थे। ये तो मतलब ये तो बहुत बुनियादी बात है, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनका ताल्लुक पैसों से भी है। कोई भी बिल्डिंग बनाने वाला आदमी जो है वो ये समझता है कि पैसे बचा करके टॉयलेट की फैसिलिटी मुहैया नहीं करता है तो उससे कौन पूछने वाला है, एक बात। दूसरी बात ये, अगर वो टॉयलेट बना भी देता है तो सिर्फ टॉयलेट बनाना कोई मसला नहीं है, उसको एक मेंटेन करना, उसकी सफाई रखना, उसमें पानी का इंतजाम मौजूद होना, उसके सीवरेज का बाहर निकलना, गटर का ना उगलना। आप सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी चले जाएं, सरकारी यूनिवर्सिटी, और जाके वहाँ देखें वहाँ पर सीवरेज सिस्टम का क्या हाल है। तो ये तो एक बुनियादी बात है, क्योंकि इसमें जो मेंटेनेंस का मसला है उसके लिए भी कोई फंड्स की एलोकेशन नहीं होती है। सो कंटिन्यूस एफर्ट है। डॉक्टर शाह, एक चीज़ लास्ट पे, अगर हम अपने खत्ते में भी देखते हैं तो भारत ने काफ़ी इसमें प्रोग्रेस दिखाई, टॉयलेट्स की सहूलत मुयस्सर करने के लिए वहाँ एक नेशनल कैंपेन चलाई गई। पाकिस्तान कुछ सीख सकता है इससे? पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ कि इस वक्त मैं अटलांटा हूँ। आप अमेरिका के ऐसे रेस्टोरेंट में जाएं जो पाकिस्तानी लोग चलाते हैं और उनका मुकाबला करें आप मैकडॉनल्ड से या चिक-फिल-ए के रेस्टोरेंट से, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तानियों की कुछ आदत सी है कि उनके टॉयलेट गंदे हो तो उनको ज़्यादा खुशी होती है। ये मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और ये तजुर्बा आप कर लें पूरे अमेरिका में और बरतानिया में ढूंढ करके कि जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट होंगे वो खाना तो बहुत अंदर खिलाते होंगे, लेकिन उनके टॉयलेट खासतौर पर औरतों के टॉयलेट ऐसे नहीं होंगे कि आप जाके इस्तेमाल कर सकें। तो आप खाते हैं जाके पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में और टॉयलेट जाके इस्तेमाल करते हैं अमेरिकन रेस्टोरेंट में। तो यही हाल हमारी मस्जिदों का भी है, बड़ी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा। आप पाकिस्तान की मस्जिदों में चले जाएं या अमेरिका की मस्जिदों में चले जाएं, टॉयलेट का वो निज़ाम नहीं है जो एक महज़्ज़ब मुल्कों में होना चाहिए। इसकी शायद हमारी नेचर में है, हमारी आदत में है। गो कि हम दावा करते हैं कि सफाई नस्ल ईमान है, लेकिन सफाई से हमारा कोई खास ताल्लुक नहीं है। और ये गरीब लोगों को छोड़ें, अमीर लोगों की भी आदतें इसी तरह की हैं, और इसका ताल्लुक सिर्फ एटीट्यूड से भी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हिंदुस्तान में इस मसले पे बहुत काम हुआ है, फिल्में बनाई गई हैं, और सरकार ने लाखों की तादाद में टॉयलेट बनाए हैं, क्योंकि जो हुकूमत करने वाले लोग हैं उनकी ये बात समझ में आती है कि मुल्क का बचत इसी में, जो अफरादी कुव्वत पानी की बीमारियों से हलाक हो जाती है और उन पे जो खर्च होता है उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम टॉयलेट पर इन्वेस्ट करें। डॉक्टर लास्ट पे क्विकली, मेरे पास 10 सेकंड है, अगर आप बता सकें वर्क प्लेस पे कितना ये इंसानी हुकूक की वायलेशन है कि वर्क प्लेस पे टॉयलेट्स ना हो? ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही ग्रॉस और सीरियस किस्म की इंसानी वायलेशन है, और इस पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत के सिलसिले में कानून बनाने चाहिए और प्राइवेट अदारों को इस सिलसिले में खुद एक्शन लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शीर्षा सैयद, आप हमारे साथ थे अटलांटा से, और कितनी ग्रेविटी है इस पूरी सिचुएशन की और कितनी गंभीर है उस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।